Hello everyone, good morning. I hope all of you are doing good. So last time we did revision of the first three chapters. Okay, angle and its measurement किया हमने. Then trigo 1, right? And then trigo 2, right? We have looked into all its formulas and we have solved some questions regarding those formulas. ठीक है, कुछ sample questions भी किए हमने. Okay, although since this was a revision kind of thing, so I did not solve lot of questions. But yes, I tried to solve some different questions from the regular batch. Okay, so it will be quite helpful to you. Okay, and there are some doubts, lingering about some of कुछ questions है जो previous batch के मतलब जो जिन्होंने early start किया lectures उनको वो थोड़े advanced type of questions है वो मैंने revision में cover नहीं किए because that would be like too much for those who are late. Late admission जिनके को थोड़ा सा indigestion हो जाता वो advanced topics देख के थोड़ा. So I have kept it, लेकिन solve करेंगे जरूर. We are planning this Sunday for a doubt solving session, so perhaps we'll take it. Then we'll have, most probably I'll have a live class for maths, and we'll get to talk and interact with each other for the first time, and I'll get to know how much you are par with the subject. ठीक है. So yeah, I'm looking forward to it. Right now we'll move ahead. We'll start with our next chapter, that is determinants and matrices. Okay, so chapter number 4, which is determinants and matrices. ठीक है, तो determinants and matrices ये लिखा है प्लूरल फॉर्म में इनके. ठीक है, आप जानते हो प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल, राइट? तो सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट? एंड मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिक्स लिखते हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट समझने से पहले we'll understand what is a matrix. ठीक है, तो मैट्रिक्स देख के, ये वर्ड देख के मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ गया सबसे पहले, और आपके नहीं, even if you try to google it, I'll just show you. मैट्रिक्स ये सर्च करने पे गूगल भाई साहब क्या बताते हैं, सॉरी थोड़ा सा वाईफाई लैग हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज है थोड़े. ये आता है, तो इमेजेस पे हम लोग जाएंगे तो वो ये चीज दिखाता है, राइट? आई थिंक एंड दिस इज व्हाट कम्स टू योर माइंड टू, राइट? जैसे हम लोग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ये वर्ड सुनते हैं तो दूसरा वर्ड आपके दिमाग में आता है नियो, मॉर्फियस, है ना? एंड दैट होल काइंड ऑफ मैट्रिक्स वर्ल्ड. ठीक है, और वो they would download the fighting styles and they would download many things and they would use their what a lovely world. Okay, but something let me tell you, ये जो पिक्चर है ना, ये देखो इसके बैकग्राउंड में, या फिर ये पिक्चर, दिस इज व्हाट a real matrix is like. ओके, यही मैट्रिक्स है. और जो बताते हैं वो लोग मूवी में मैट्रिक्स क्या है. इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग बट स्टिल इट्स अ गुड कंसेप्ट. Actually this world, even this world जो भी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है, this is all actually what it is, all matrix. Okay, so let me just show you what does Morpheus tells Neo about what is a matrix. Okay, so I hope कि इसका ऑडियो भी आपको आ रहा है, but nevertheless इसके subtitles भी है, so you can make sense out of it. So this is the first time Morpheus reads Neo. Feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere.
It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Before you choose, let us go back to a subject. Okay, so actually, coming back to our subject, in that movie, let me just tell you, they have mixed two things. They have said that the whole world is a matrix, okay, and you have been trapped here. And there is a software world which is also a matrix. Okay, so to give you an example कि वो क्या actually बोलना चाह रहा है, let me just insert a picture over here. Okay, तो यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं. इसको कहते हैं RGB पिक्चर, है ना. ये चीज आपने देखी है पहले कभी? I don't know if you have seen it, but in the old television set अगर आप बहुत क्लोजली जाके देखते हो ना, तो आपको ऐसे लाइंस मिलेंगे. ये वर्टिकल है, कभी हॉरिजॉन्टल होते हैं, कभी 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 वर्टिकल्स होते हैं, बट दिस इज कॉल्ड RGB. stands for red, green, sorry, G for green, and P for blue. ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ऐसे फ्लैग्स होते हैं ये, मतलब एज इन रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं. मतलब कोई भी पिक्चर अगर आप देखो, उसको बहुत 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 जूम करो, है ना. इफ द पिक्चर इज डिजिटल सॉफ्टवेयर जनरेटेड, बहुत ज्यादा जूम करो तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा. इट इज जस्ट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू. ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाता हूँ. ये पिक्चर देखो, ठीक है. नाउ लेट मी लाइक जूम इट टू इंफिनिटी. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इसको जूम करूंगा. ठीक है, देख रहे हो वर्टिकली जूम हो रहा है, काफी जूम हो रहा है, राइट. काफी हो गया. भी हॉरिजॉन्टली भी करते हैं. या आई थिंक दिस इज इनफ. तो अभी अगर आप ये क्लोजली देखोगे ना, यहाँ पे you will see the same bands, red, green and blue, है ना. आप जितना ज्यादा जूम करोगे उतना क्लियर होता जाएगा. बट देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, different shades of red, different shades of green and different shades of blue. ठीक है, in this band. Okay,
इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अगर बनाओगे ऐसे, एंड इफ यू अरेंज दोज फ्लैग्स, ठीक है, ये देखो, ये बैकग्राउंड तो है वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन और फिर ब्लू, ठीक है, वापस नीचे ऐसे रेड, ठीक है, फिर ग्रीन, ओके, फिर ब्लू, ठीक है, वापस रेड, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट शेड्स, ओके. So what this becomes is, I'm sorry, I should not use this color. What this becomes is, this is a matrix, okay, this is arrangement of different numbers. अभी ये जो red है ना, I don't know if I can show you the colors in here, but of course I can show you in paint. ये हर एक शेड को एक नंबर दिया जाता है, हर एक रेड शेड को एक नंबर है, या देखो अभी यहाँ पे अगर मैं, अब यहाँ दिख रहे हो रेड ग्रीन ब्लू, अगर रेड में टाइप करता हूँ 253, तो मेरे को एक शेड देगा वो, उसके साथ मुझे मिक्स करना है ग्रीन जो है 135, ओके, तो उसने मिक्स कर दिया, देखो ये कलर बन गया, फिर उसके साथ मुझे ब्लू मिक्स करना है 25, 256 करते तो ये हो जाएगा, ओके. तो इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री कलर्स, वॉट एवर यू सी, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो. यहाँ पे अगर देखो तो आपको अलग अलग, इस पे अलग अलग नंबर मिलेंगे, ठीक है. तो मान लो ये नंबर्स जो है, ये यहाँ पे ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, रेड का नंबर यहाँ पे, ग्रीन का नंबर, ब्लू का नंबर, ये इसका शेड, इसका शेड, इसका शेड, जो भी शेड है उसका अकॉर्डिंग मैं नंबर लिखूंगा. सो व्हाट दिस बिकम्स is an arrangement of numbers, okay. So the matrix is nothing but the definition of matrix, if you see in your textbook, okay, let me just read it for you. तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, देखो, मैट्रिक्स मतलब, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ता हूँ. इट इज सेड दैट द थियरी ऑफ मैट्रिसेस वाज डेवलप्ड बाय मैथमेटिशियन आर्थर केली. Matrices are useful in expressing numerical information in compact form. They are effectively used in expressing different operators. Hence, in economics, statistics, computer science, they are essential. तो ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है वैसे. Definition ये है कि a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. ठीक है, क्या है मैट्रिक्स? यही पिक्चर देख लो. मैट्रिसेस पहले डेफिनेशन लिखते हैं, या फिर मैं आपको पहले पिक्चर का ये दिखाता हूँ. ये पिक्चर को आप जितना जूम आउट करोगे ना, ओके, the picture will make sense, okay. The same picture which was made by different shades of red, green and blue, now it has started making sense to us, okay. Let me show you a clearer picture, okay, this one. I hope everybody can see this one, okay. So this is also nothing but इसका zoomed version ये है, okay. So that's it. So I'll write the definition here. Matrix, a rectangular arrangement of numbers, ठीक है. कुछ नंबर्स ऐसे, कुछ कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे हमने रैंडमली पेंट में आपने देखा ना, मैंने कोई भी रैंडमली नंबर्स कुछ पुट किए, ओके. सो दीज आर लाइक रैंडम नंबर्स, इट कैन बी 1 2 व्हाटएवर, ओके. सो of numbers
in some m number of rows and n number of columns. ठीक है, मतलब कोई भी certain m number of rows में, जैसे यहाँ पे कितने रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 रोज है यहाँ पे, तो कुछ 9 हो सकता है and 2 columns, so n is 2. Okay, so this is the definition of matrices. अभी उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो कहता है कि everything is made up of matrix. Okay, and you are a bloody slave to this, world of matrices. Why does he say that? That whole movie is being, inspired by the concept from Bhagavad Gita. Okay, in Bhagavad Gita, Krishna says that this whole material world is made up of 3 gunas. ठीक है, तो इसमें let me give you some knowledge from Bhagavad Gita. Krishna says that this whole material world is made up of 3 gunas. Okay, त्रैगुण्य विषयापिता. ठीक है, 3 गुण कौन कौन से? He says सत्व गुण, then second one is rajogun, and the third one is tamagun. What is sattva gun? It is mode of goodness. ठीक है, these are tangible things as Krishna says. Okay, then this is mode of passion, and there is tamagun, that is mode of ignorance, he says. And now if you take these 3 gunas and you intertwine it, okay, so it will form something like a rope, right? ये rope कैसे बनता है? ऐसे कुछ बनता है rope, right? इसमें थर्ड गुण, तो ऐसे और 2 ropes ले लो, ठीक है, and you again intertwine it, it will make one more huge rope, ठीक है, and you again intertwine such 3 ropes. Okay, ये rope है, ये पहली rope है, ये पहली rope, and this is also rope. Then you keep doing this thing, and that is how Krishna says this material world is formed. So even our human body, he says, okay, so this is a quite fancy representation of human body. Okay, but even the human body, is made up of, it has all the 3 gunas. Okay, when we sleep we are in the mode of ignorance. Okay, when we are meditating or doing some good things, when we are praying to God, we are in the mode of goodness, and when we are working passionately to achieve something, then we are in the mode of passion. Okay, and this is the world where we are trapped in. Okay, this is what Bhagavad Gita says, as same as what Morpheus says to Neo, and we don't even realize that we are trapped in these 3 modes. Okay, and the whole aim of Bhagavad Gita is to get out of this modes, which is called as moksha. Okay, see, the whole aim is to get out of this material world. Okay, and these 3 gunas, if I don't have the picture right now, let me just check. This is just for your interest, to understand matrices. The whole world is also a matrix. Not here, I guess it's here. Okay, so I had to search the internet. I found it. Yeah, so this is the picture. Okay, अभी ये थोड़ा blur हो रहा है, but this is how Krishna explains it, that these are the 3 modes of nature. Nature is actually made up of 3 modes: sattva gun, rajagun, tamagun. Okay, and this is like puppeting all of us, and that's how we are in almost total control of the nature.
Okay, and we have to get out of this, and that process is called as attaining moksha. Okay, and how to do it, and if you need more information about it, we can get to it, but for now let's learn about matrices more. Okay, if somebody wants to know, they can talk with me. Okay, लेकिन अभी matrices के बारे में सीखते हैं अच्छे से. ठीक है, तो matrices जैसे मैंने कहा, it is arrangement of numbers in rows and columns. ठीक है, तो इसमें देखो, ये चैप्टर में मैं पहले कंटेंट्स दिखाता हूँ हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं. पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में पहले डिटरमिनेंट से शुरू किया है, बट आई फील कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग डिटरमिनेंट्स इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिसेस और उसके टाइप्स और उसके ऑपरेशंस. ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन जैसे हमने अभी देखा, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. वैसे मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, मैट्रिसेस. आपको अब ये लग रहा होगा, अरे ये तो इसमें मैट्रिसेस की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो बाद में क्या वैल्यू देगा ये हमें, सो व्हाई टू स्टडी इट एट ऑल. बट दिस concept is actually there in everything when you study sciences. आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, सो आपको इसकी जरूरत हर एक ब्रांच में होगी, लॉजिस्टिक्स से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके कंप्यूटर साइंस से लेके स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, मतलब मैकेनिक्स तक सब कुछ में आपको मैट्रिसेस मिलेंगे. ठीक है, सो यू बेटर बी क्वाइट गुड एट इट. Okay, then the second thing is we are going to see operations on matrices. And the third thing is properties related to matrices. ठीक है, and then we'll start with definition and expansion of determinants. ठीक है, डिटरमिनेंट्स क्या है बाद में देखेंगे हम लोग, ये बहुत ही फुद्दू सा कंसेप्ट है, बाद में देखेंगे. माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ठीक है, फिर इसका हम लोग डिटरमिनेंट्स. फिर इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा. ओके, अगर फ्लो में भूल गया तो मुझे प्लीज रिमाइंड कर देना व्हाट्सएप पे शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए. ओके, देन वील गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. ओके, एंड देन लास्टली क्या होता है चैप्टर के लास्ट में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स. वैसे तो मैंने आपको रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन है अभी बता दिए, लेकिन ये हम लोग एप्लीकेशन मतलब मेरे ख्याल से वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, अच्छा, तो अभी विल डाइव इनटू द थियरी ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो अभी 24 मिनट्स का अच्छा बैकग्राउंड स्टडी हमने देख लिया है ऑफ दिस चैप्टर. आई थिंक इट इज टाइम टू स्टार्ट विद द थियरी ऑफ आवर चैप्टर. अभी देखो, मैंने आपको ये सब चीज बताया, ये सारा
है ना, वो पिक्चर वगैरह जो मैंने आपको दिखाया और ये सब चीजें जो मैंने दिखाई. सो इट इज वेरी एडवांस लेवल ऑफ ये सारी चीजें. ओके, दिस इज वेरी एडवांस लेवल ऑफ यूज ऑफ मैट्रिसेस. इतना डेप्थ में अपने को स्टडी नहीं करना है. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर. ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक हमें देखना है. इट इज वेरी इजी. एज आई सेड, बहुत ही फुद्दू कंसेप्ट है इसमें. वेरी वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, इसमें मार्क्स बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो. कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको ज्यादा लिखने की जरूरत है. ओके, एंड विथ माई शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो अगर किसी के मन में इतना डाउट है कि अरे सर इतना फंडामेंटल लेवल का प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ इसमें है तो कैसे होगा अपने से, नहीं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. तो कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करने वाले हम लोग. वी आर जस्ट गोइंग टू सिंपली play with numbers. Okay, simple game of numbers. Okay, so let us start. तो बेसिकली मैंने आपको मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताया. ये कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता है मैट्रिक्स. ये सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है ऑफ डिफरेंट नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करते हैं विद एन अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट. ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, फिलहाल ए ले लेते हैं. ठीक है, ए हमने मैट्रिक्स ले लिया. ठीक है, फिर मैट्रिक्स हम लोग कैसे दिखाते हैं, इन क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, ये हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया. 3x3. 3x3 से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, 3x3 से मैं ये बता रहा हूँ, पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, वैल्यूज में लिख लेता हूँ. क्या इसमें वैल्यूज है 2 1 4, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है ये. ठीक है, -3 0 -2 9 -7 1. ठीक है, तो इसमें देखो ये जो है, दिस इज आवर फर्स्ट रो, राइट. दिस इज आवर सेकेंड रो. आई होप सब लोग रो क्या है ये समझते हो. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है. एंड दिस इज आवर थर्ड रो. So this first 3 stands for rows. ठीक है, then this is our supposedly first column, right. This is our second column and this will be our third column. So this 3 stands for our columns. ठीक है, so this is a 3x3 matrix. मतलब in the sense it states that there are 3 rows and 3 columns in this matrix. Okay, each term in this matrix. ठीक है, जैसे ये 2 है या फिर -3 है या फिर 1 है, जो भी है. ठीक है, ये हर टर्म को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो नंबर है, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स. ठीक है, तो अभी मुझे अगर बोलना है कि -7 ये एक एलिमेंट है, in a matrix which is denoted as A. लेकिन अगर किसी ने पूछा कि ठीक है A मैट्रिक्स में है, लेकिन A मैट्रिक्स में कहाँ है ये, okay, what is its position, इसकी पोजीशन क्या है, हाँ, इसका एड्रेस तो बताओ. ठीक है, कहाँ है ये, तो कैसे बताओगे, एक मैट्रिक्स में हर एक चीज का एक एड्रेस होता है. ठीक है, जैसे ये 1 है, ये -7 है, ये एक यूनिक पोजीशन पे खड़े हैं, तो हर पोजीशन को एक एड्रेस डिनोट करते हैं. ठीक है, ये एड्रेस डिनोट करने की सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कैसी. ठीक है, अभी यही ए मैट्रिक्स को मैं एड्रेस के सिस्टम में लिखता हूँ. ठीक है, ये ए है, 3x3 की मैट्रिक्स है. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, स्मॉल ए से मैं डिनोट करता हूँ. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इज इन द फर्स्ट रो, first column. Our second element
will be in the first row, second column. I hope you are understanding how I'm writing it. The third element, इसका एड्रेस है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ये. ठीक है, so A11, then second is A12, third one is A13. ठीक है, फिर बाद में जो यहाँ पे एलिमेंट आता है, ठीक है, ये सब पोजीशंस है एलिमेंट्स के, राइट. 3x3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है, ऐसे पोजीशन है. इस पोजीशन को कहते हैं ए, क्या होगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. दिस विल बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. दिस विल बी सेकेंड रो थर्ड कॉलम. दिस विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट. तो ये सब मैंने कैसे लिखा है देखो. ए आई मतलब है जो इसका रो है, और जे जो डिनोट करता है कॉलम. ठीक है, सो आई डिनोट्स द रो, whereas J denotes the column of the elements, right. ये नोट कर लो, ये एक जेनरिक फॉर्म है कि मैट्रिसेस कैसे होते हैं. तो अभी अगर मुझे एक्सप्लेन करना है कि -7 की पोजीशन क्या है, ठीक है, -7, ठीक है, तो ये पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ, राइट, दिस पोजीशन. सो दिस पोजीशन इज लाइक A23 इज -7. ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है. ओके, सो दिस इज हाउ a matrix is represented. I hope you are understanding कि कैसे, you know, in general, you know, matrix is represented. Okay, तो यहाँ मैं एक और चीज लिख लेता हूँ, ऐसे लिखते हैं इसको. Here Aij is equal to an element in ith row and jth column. ठीक है, now this will be crystal clear to you. ठीक है, तो ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स. हर बार मैट्रिक्स 3x3 नहीं हो सकता. मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, मैट्रिक्स एक, मान लो 3x1 है, इसका क्या मतलब है, 3 रो है, 0 1 0, ठीक है, और एक ही कॉलम है. या फिर मैट्रिक्स 1/3 हो सकता है. ठीक है, तो ये है perhaps 0 1 0 अगेन. ठीक है, तो डिपेंड्स. ठीक है, मैट्रिक्स कैसे भी हो सकता है, इसको हम लोग, ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है एक मैट्रिक्स में, और इसके एड्रेसेस हमने देख लिया कैसे देते हैं हम लोग. ठीक है, हर एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए एड्रेसेस कैसे देते हैं. तो अभी इसमें भी एड्रेस देखो कैसे होंगे, बी में एड्रेस देखो कैसे होंगे. Let us take small b over here. So this will be like first row first column, then second row first column, and then third row first column. That's it. Okay, for C it will be like small c, first row first column, right, small c, first row second column, small c, first row third column. Okay, 3x1 and this is 1/3. I hope you are getting the difference. ठीक है, कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग. Okay, so this here it
ये जो सफिक्स है इट रिप्रेजेंट्स कि कितने रोज और कितने कॉलम्स है मैट्रिक्स में, और अंदर जो i और j है वो डिनोट करते हैं द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ तक तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी।